परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति होवे। I count it as a great privilege for me to share the word of God among you. मैं वाकई इसको सौभाग्य मानता हूं कि आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को पेश करूं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Shall we turn to a Bible to the book of Hebrews? हमारे पवित्र शास्त्र को इब्रानी की पत्रिका की ओर हम पलटे। Hebrews chapter 10 and verse 37. इब्रानी की पत्रिका 10वां अध्याय की 37वां वचन। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। The theme of this Bible study or this convention is the second coming of our Lord Jesus Christ and its events. हमारे बाइबल दिन का विषय है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और उसके प्रति रहने वाले चिन्ह। Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। Continuously till Sunday evening you will be hearing this word. लगातार इतवार के शाम तक प्रभु के वचन को आप सुनेंगे। And here Saint Paul writes like this. यहाँ संत पौलुस ऐसा लिखता है, For yet a little while and he that shall come will come क्योंकि and will not tarry. क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। Second coming of our Lord Jesus Christ, the greatest hope for every Christian. हर एक मसीहियों को प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन एक बड़ा ही आशा है। The resurrection of Jesus Christ, the backbone of Christianity. एक मसीहित का पीछे रीढ़ का हड्डी जो है वो मसीह का दूसरा आगमन है। And the hope of the Christian or Christianity is about his coming or second coming. एक मसीह का आशा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। So I don't want to explain much more. I want to directly go to the Word of God. मैं ज्यादा इसके बारे में वर्णन नहीं करना चाहता हूं। मैं सीधा विषय के भीतर प्रवेश करने के लिए चाहता हूं। Bible contains two parts. One is Old Testament, another is the New Testament. पवित्र वचन का दो भाग है, एक पुराना नियम और दूसरा नया नियम। In the Old Testament, altogether 929 chapters are there. पूरा मिलकर पुराने नियम में 929 अध्याय है। And in that 1845 times we could see about the second coming of Jesus. उसमें 1845 बार यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बारे में उल्लेख किया गया है। And in the New Testament there are 260 chapters are there. और नया नियम में 260 अध्याय है। And in that nearly about you can see about the second coming of Jesus Christ for 318 times. वहाँ 318 बार नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बारे में उल्लेख किया गया है। So in each and every part of the Word of God you could see about the second coming of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के वचन के हर एक भाग में प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बारे में लिखा गया है। Saint Paul writes in about 14 epistles to the church. संत पौलुस लगभग 14 पत्रिका कलीसिया के लिए लिखता है। And in that more than 50 times he reminds the people of God about the second coming of Jesus. उसमें लगभग 50 बार से अधिक वो प्रभु के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में स्मरण दिलाता है। In the New Testament from Matthew to Revelation, नया नियम में मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक every 25 verse, that is average I am telling, every 25 words we can see about the second coming of Jesus. लगभग हर एक 25 वचन में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा गया है। Even in the last book, the last chapter also Jesus said 2 times, behold I come quickly. आखिरी पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम देखने के समय भी वहाँ यीशु मसीह 2 बार अपने दूसरे आगमन के बारे में लिखा। Revelation chapter 22 verse 7 and 12, in this both the verse we can see that Jesus himself said, behold I come quickly. प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय के 7वां और 12 वचन में हाँ मैं बहुत ही शीघ्र आने वाला हूं करके कहता है। We all know that Jesus he served or he did his ministry on this earth for 3.5 years. हम सब जानते हैं हमारे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लगभग 3.5 साल उसने अपना सेवा को किया। In this 3.5 years he chosen 12 apostles for him. इस 3.5 साल में उसने अपने लिए 12 चेलों को नियुक्त किया। And he shared more about the second coming or of his second coming. उसने अपने चेलों के साथ लगभग अधिक समय अपने दूसरा आगमन के बारे में उसने बातचीत की। As he shared frequently about his second comings to his disciples, लगातार जब अपने चेलों के साथ अपने दूसरे आगमन के बारे में जब वो बात करता है, once his disciples came to him and when he was alone they were inquired or they asked unto him. जब वो एकांत में था तब उसके चेलों ने उसके पास आकर उसके आगमन के बारे में जब उससे पूछा। Gospel of Matthew chapter 24 and verse 3. मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय के 3रा वचन।
और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of the coming and of the end of the world? They were asking two questions to him. यहाँ वे प्रभु के सामने दो सवाल को रखते हैं। What shall be the sign of thy coming? आपके आगमन का चिन्ह क्या होगा? And what is the sign of the end of the world? और इस संसार का अंत का घटना क्या होगा? So two things they were asking. वो दो सवाल प्रभु के सामने वे रखते हैं। So followed by Jesus answered them, what would be the signs? और उनके उत्तर और जवाब के साथ उसके चिन्ह क्या होगा करके यीशु मसीह उनको कहता है। The theme of our Bible study of this convention is also about the second coming of Jesus and the signs of the last days. हमारे बाइबल अध्ययन के विषय भी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और उसके आने वाले समय का चिन्ह होकर रहेगा। I am not going to explain about these signs for all the 4 days. मैं उसके इस चिन्ह के बारे में ये सारे 4 दिन में नहीं बताने वाला हूँ। I am not coming here to give you information. मैं यहाँ आपको केवल कुछ संदेश या सूचना देने के लिए नहीं चाहता हूँ। The picture behind me and even the notice in your hand is also represent some of the signs of the last days. मेरे पीछे लगाया हुआ चित्र और आपके हाथ में दिया हुआ नोटिस में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले होने वाले आखिरी दिनों के चिन्हों के बारे में उल्लेख किया गया है। So only today I will just explain about the signs of the last days. आज मैं आखिरी दिनों के चिन्ह के बारे में आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। When the disciples asked this question, जब चेलों ने ये सवाल को प्रभु के सामने पूछे, what was the reply of Jesus immediately? तुरंत यीशु मसीह ने उनके लिए क्या जवाब दिया? In Matthew chapter 24, मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय 4th verse, 5th verse, 4 और 5 वचन, 11th verse and 24th verse. 11 और 24 वचन। In all these verses, what he said, ये सारे वचनों में प्रभु ने क्या कहा? first he said in the 4th verse, पहला उसने 4 वचन में क्या कहता है? take heed that no man deceive you. सावधान रहो क्योंकि तुम्हें कोई न भरमाए पाए। Again, the 5th verse he said, और 5 वचन में वो कहता है, many shall come and they say, I am Christ, and shall deceive many. और बहुत सारे लोग मेरे नाम से मैं मसीह हूं करके आएंगे और बहुतेरों को भरमाएंगे। 11th verse Jesus said, 11 वचन में वो कहता है, many false prophets shall arise and shall deceive many. बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। Again, the 24th says, they shall deceive even the elect. और 24 वचन में कहता है, वे चुने हुओं को भी भरमाएंगे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। So the very first sign of his second coming is deception. ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का पहला चिन्ह वो भरमाए जाने वाला है। Today we could see the spirit of deception working among the public and the people and the nation and the kingdom and everywhere. ये भरमाने वाला आत्मा इन दिनों में लोगों के अंदर, राज्यों के अंदर और हर एक बातों के अंदर देख सकते हैं। Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। No one could stop it. कोई भी उसे रोक नहीं सकता। Because even in the house, same family also, people deceive one another. एक मनुष्य और अपने परिवार में भी एक दूसरे को एक व्यक्ति भरमाता है। Husband deceive wife and wife deceive husband. एक पति अपने पत्नी को भरमाता है और पत्नी भी अपने पति को भरमाती है। Like that, the spirit of deception is working everywhere. इस रीति से ये भरमाने वाला आत्मा हर एक जगह में काम कर रहा है। So Jesus said, first take heed. इसीलिए यीशु मसीह कहता है, सावधान रहो। Or in other words, we can say, be careful about the spirit of deception. दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि हम सावधान से रहे इस भरमाने वाले आत्मा से। Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। Now let me go to the signs of the last days. अभी आखिरी दिनों के चिन्ह के पास मैं जानने के लिए चाहता हूँ। Jesus said many things about the signs of the last days. यीशु मसीह ने कई बातों को आखिरी दिनों के चिन्हों के बारे में उल्लेख That किया all गया। things are happening right now. हर एक बात आखिरी दिनों में हो रहा है And many things that is fulfilled. और कई बात बीत चुका है And some things are yet to be fulfilled. और कुछ बात आने वाले दिनों में होना बाकी है। Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति Now हो। give attention to the pictures. अभी आपके पीछे आपके सामने लगाया हुआ पिक्चर को आपको देखिएगा। Each and every picture denotes the signs of the last days. हर एक चित्र जो है आखिरी दिनों के चिन्हों को उल्लेख करता है। And all these pictures are related to the biblical verse. और हर एक चिन्ह जो है ये हर एक घटना प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर निर्भर है। It's not something of my own opinion.
opinion. ये हर एक बातें मेरा केवल सोच नहीं है। Behind there are 4 pictures are there. आपके सामने 4 चित्र लगाया गया है, And even the notice which is in your hand, behind that notice the same picture is printed over there. और आपके हाथ में दिया हुआ नोटिस में भी ये 4 चित्र लगाया गया है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Let me go one by one. अब एक एक चित्र के पास में जाने के लिए चाहता हूँ। If you have the picture, you please just see that picture. यदि आपके हाथ में वो चित्र है तो आप उस चित्र के ऊपर अपने नजर रखिए। If not, just to see this picture which is behind me. यदि नहीं है तो मेरे पीछे लगाया हुआ उस चित्र को आप देखिएगा। First, you see a big shark over here. पहला आप एक बड़ा शार्क मछली को आप देख सकते हैं। And in this sea water, there are so many sharks are gathering, swarming in one place. ये समुद्र के पानी में ये शार्क मछली जो है एक बड़ा झुंड होकर दिखाई देता है। And these sharks are gathering in the coast of Hadera in Israel. ये शार्क मछली जो है हदेरा इस्राएल के तट में वो पाया जाता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। And the gathering of these fishes or these sharks are very uncommon. ये इकट्ठा होने वाला जो बात है वो साधारण नहीं है। Even scientists unable to understand why these sharks are gathering in this Hadera coast. ये वैज्ञानिक लोग भी ये शार्क नामक मछली इस तट में क्यों ऐसा इकट्ठा होते हैं करके वे ना समझ है। Never and ever, even in the normal days also, the sharks won't come to this place. साधारण रीति से ये शार्क मछली जो है इस जगह में कदापि इकट्ठा नहीं होता। However, the Bible scholars, when they saw all these things, लेकिन ये जब प्रभु के वचन के वैज्ञानिक जब इस बातों को उन्होंने देखा, they are comparing these sharks to the word of God and they confirm about the second coming of Jesus. ये शार्क को प्रभु का वचन के साथ तुलना करके प्रभु के वचन के प्रति वे कुछ बातों को वे कहते हैं। In the book of Ezekiel, chapter 38 and 39 speaks of the third world war. एजेकियल भविष्यवक्ता का पुस्तक 38 और 39 वचन में तीसरा महाविश्व युद्ध के बारे में हम देखते हैं। And these sharks could possibly be used by God for eating the flesh of the enemies. ये शार्क मछली जो है शायद उस युद्ध में शत्रुओं के मांस खाने के लिए उपयोग किया जाएगा। They are not confirming, could be possibly. वे निर्धारित रूप से नहीं कहते हैं, लेकिन वे कहते हैं शायद ऐसा हो सकता है। Because many nations will come to fight against with Israel. कई जाति इस्राएल के विरोध में चढ़ाई करेगा। And these fishes are already gathering over there to eat the flesh of the enemies. और ये शार्क मछली जो है ये शत्रुओं के मांस को खाने के लिए पहले से ही वो इकट्ठा किया जा रहा है। And in Ezekiel chapter 47 and verse 9 it is written, एजेकियल भविष्यवक्ता का पुस्तक 47 अध्याय के 9 वचन में माने के समय, because this water gathering are flowing in this place, fishes will increase. क्योंकि जब ये पानी का बहाव इस नदी में ज्यादा है, इसीलिए ये मछली इस जगह में वो अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा। Most of the times we interpret in this way, spiritual way, हम आत्मिक तौर से अधिकतम इस बात को ऐसे कहते हैं, that river is the Holy Spirit. ये नदी जो है पवित्र आत्मा है। Wherever this river flows, जहां कहीं ये नदी बहता है, fishes, souls will increase. ये मछली या आत्मा बढ़ता जाएगा। But here literally it is going to be fulfilled, or many fishes are swarming in that place. लेकिन इस जगह में अक्षरी तौर से ये मछली बढ़ता जाएगा या ये मछली इकट्ठा होकर झुंड में झुंड वे बढ़ता जाता है। Not only these fishes, ये मछली केवल नहीं है। in some couple of years back, कुछ साल पहले a sort of vultures gathered in Israel. एक झुंड का गिद्ध जो है इस्राएल में बढ़ता गया। And it was increasing in such a huge number, वो ऐसे गिनती में बढ़ता गया, as it is written in Ezekiel as well in Revelation. ये इसके बारे में एजेकियल और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा गया है। I will give their flesh to the fowls of the air. मैं उनके मांस को आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को दूंगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। That means these fishes, these vultures are gathering in one place in order to eat the flesh of the enemies. ये गिद्ध और ये मछली एक जगह में इकट्ठा होने का मकसद ताकि ये शत्रुओं के मांस को वे खाए। Second picture, you could see the cashless society. दूसरा नकद रहित समाज को हम देख सकते हैं। That means today it is very famous and it is spreading very fast in India. इन दिनों में भारत देश में वाकई ये बढ़ता जाता है। Even a normal person knows what is Paytm. इन दिनों में हर एक साधारण मनुष्य में भी पेटीएम क्या है करके वे जानते हैं। Everyone knows what is ATM. और हर एक लोग जानते हैं कि एटीएम क्या है। And in some schools or in some places I heard about even paying the money also through ATM only. कुछ स्कूल में भी इन दिनों में यदि आप फीस भरने के लिए जाते हैं तो वो एटीएम के द्वारा ही भरना चाहता है।
The people are using credit card, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, debit card, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते and हैं। most of the transactions are done only through online. अधिक लेन देन जो है वो ऑनलाइन से ही होता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की The स्तुति हो। ultimate purpose of this function is ये इस बातों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? no need to take money in our hands. कोई भी व्यक्ति अपने हाथों में नकद नहीं उठाना चाहिए। Everything through e-world. हर एक बातें ई वर्ल्ड के द्वारा ही करना है। Even in the villages also, now the government instruct them also to open a new account. इन दिनों में गांव में भी सरकार ऐसे कहते हैं कि वे अपने पास ऐसे खाता को खोलना है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। So now this world is called as the e-world. अभी ये संसार को ई वर्ल्ड के नाम पे जाना जाता है। Now this world is means seeking for the what we call this payment wallets. इन दिनों में ये संसार ऐसे पेमेंट वैलेट को वो ढूंढ रहा है। Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। So to implement this to every individual, ये बात को हर एक व्यक्ति के अंदर लागू करने के लिए now you can see the Grameen Bank, which was called Bandhan Bank. इन दिनों में ग्रामीण बैंक को हम देख सकते हैं। Even the farmers, the poor one also can start or open a new account. किसान और गरीब लोग भी इसमें अपने खाता को खोल सकते हैं। In India, 75% people are living in villages. भारत देश में 75% लोग गांव में रहते हैं। So to have all these e-wallets and the e-account and the what we call this debit card and credit card, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वैलेट ये सब रखने के लिए government is forcing people to have Aadhaar card. इसीलिए सरकार हर एक लोगों को आधार कार्ड को रखने के लिए मजबूर कर रहा है। Every individual must have the UID number. हर एक व्यक्ति को UID नंबर होना अनिवार्य है। To identify that particular person, this Aadhaar card is very, very essential. एक व्यक्ति के प्रत्येक पहचान के लिए ये आधार कार्ड बहुत ही अनिवार्य है। Through this Aadhaar card, all the citizens in India can be united. ये आधार कार्ड के द्वारा ही हर एक नागरिक भारत देश का एकता होकर बदल सकते हैं। But one thing, in order to operate all these functions, these operations, ये हर एक बातों का क्रमानुसार करने के लिए one must need internet or the smartphone. एक इंटरनेट और स्मार्टफोन बहुत ही जरूरी है। Even nearly 70% people those are sitting must have their smartphones. यहाँ बैठे हुए 75% के लोगों के हाथ में स्मार्टफोन जरूर होगा। Why these people implement all these things to the world? ये सारे बातों को इन लोग ये संसार को क्यों ऐसे लागू करते हैं? This Aadhaar card identify that person. ये आधार कार्ड के द्वारा हर एक व्यक्ति को वे पहचान सकते हैं। Now without which no one can sell or what we call purchase anything. जिसके बिना कोई भी व्यक्ति लेन देन कदापि नहीं कर सकता। Which is written in book of Revelation chapter 13. ये बात प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में लिखा हुआ है। In verse 16 and 17 it is written, 16 और 17 वचन में ऐसा लिखा है, all small and great, और हर एक छोटा और बड़ा, rich and poor, धनी और दरिद्र, and free or bond. और जो खुला है और जो बंधा हुआ है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की All स्तुति हो। these people must have the mark हर एक लोग ये चिन्ह होना है and its number और उसका अंक and the name of the beast. और इस पशु का उस नाम। In that word of God it is written, no one can buy or sell without these three things. उस वचन ऐसा कहता है, कोई भी व्यक्ति इसके बिना लेन देन कदापि नहीं कर पाएगा। Now, finally, where it will lead us? ये बात आखिरी में हमें कहाँ ले जाएगा? It will lead us to the world government. ये हमें संसार के सरकार की ओर हमें ले जाएगा। Not to the state government or the central government ये हमें केंद्रीय सरकार की ओर हमें नहीं ले जाता है, or the state government, और इस स्टेट गवर्नमेंट की ओर हमें नहीं ले जाता, but will lead us to the world government. वो हमें इस संसार के सरकार की ओर हमें अगुवाई करता है, And it will lead us to the common market. और वो हमें ये सामान्य बाजार की ओर हमें ले जाता है, And will force the people to one currency, और हर एक लोगों को एक करेंसी के अधीन में लेकर आएगा, which is happening, which is going to exit very soon on this earth. और ये इस पृथ्वी में बहुत ही जल्दी आने वाला है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Now in this evil, let me tell one more thing also. और इसके बाद इसके साथ और एक बात मैं कहने के लिए चाहता हूँ। So in order to download or to use this wallets and everything, you need a Gmail. आपको ये डाउनलोड करना है और ये ई वैलेट आपके स्मार्टफोन में यूज करना है तो आपके पास इंटरनेट होना अनिवार्य है। That means you need what we call this Gmail. आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए। When you
account, when you open a new account of Gmail, आपके पास यदि जीमेल का खाता होने पर immediately you will be tracking through the Google. और आपको ये गूगल के द्वारा आपको ट्रैक किया जाएगा। And another one is called the Facebook. दूसरा फेसबुक है। Dear ones, as the time is short, I am not able to show you everything because in the notice it is printed over there. समय के कमी के कारण मैं हर एक बातों को आपके सामने दिखा नहीं पा रहा हूँ। आपके नोटिस में ये सारे बातें छपाया गया है। So the role of Google is to tracking you. ये गूगल का एक मकसद है ताकि हर एक लोगों के ऊपर निगरानी रखना है। And the Facebook will identify you. और ये फेसबुक हर एक का एक पहचान है। How? कैसा? Because today in this Facebook only, they uploaded all things in their profiles. हमारे हर एक लोग अपने फेसबुक में ही हमारे अपने हर एक पहचान को अपलोड करते हैं। Like their likes and dislikes, उनके हर एक पसंद और नापसंद, where they are going, where they are coming. कहाँ वो जाते हैं और कहाँ से वे लौटते So हैं। everything this Google will track you, which is called the big brother. हर एक बातें ये गूगल खाता के द्वारा वे पहचान सकते हैं, इसीलिए इसको बड़ा भाई करके कहलाया जाता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। For example, उदाहरण के लिए when you open the mobile, जब आपके मोबाइल को आप खोलते हैं, you wanted to purchase, buy anything through Amazon. यदि आपको अमेज़न अकाउंट से यदि कुछ लेना है, No, that is something, so many articles are there. उसमें कई पदार्थ आपके सामने होगा। Suppose we want to purchase a shoes. शायद आपको एक शू खरीदना है तो All the pictures will come, blue, red and white and all the colors will come. आपके सामने कई नीला, हरा, हर एक कलर आपके सामने आता है। After seeing this, all these colors, if you not like it, यदि आप हर एक रंग को देखने के बावजूद भी आपको किसी के ऊपर पसंद नहीं आए तो you will exit it. आप बाहर आ जाएंगे। And after that, after a couple of days, उसके बाद थोड़े समय के बाद when you open the Google for any other work, यदि आप और कुछ काम के लिए जब आप गूगल खाता को खोलेंगे, just imagine just you want to book the ticket. शायद आप ऐसा ले लीजिए, आपको एक टिकट बुक करना है। On the right side of a mobile, some sort of shoes, colors which you never seen on that day will come on the right side. आपके मोबाइल के दाहिने तरफ आप देखेंगे, जो रंग आप उसके पहले देखा था, जो आप नहीं देखा, ऐसे एक नया रंग आपके सामने दिया जाएगा। Now you forgot what you wanted to purchase. लेकिन आप भूल गए कि आपको क्या खरीदना है। But this Google, this big brother will watch you and it will remind you what was your desire. ये गूगल खाता या ये बड़ा भाई आपको देखकर आपका आग्रह क्या है करके आपके सामने लेकर आएगा। And everywhere, wherever you go, it will track you. आप कहां भी जाते हैं तो आपके ऊपर वो एक निगरानी रखेगा। In which hotel, what type of food you are using. आप कौन से होटल में कौन सा भोजन को आप खाते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति One हो। more thing, in the mobile we could see 2G, 3G and 4G. आप मोबाइल में 2G, 3G और 4G यूज करते हैं। We are thinking, in our knowledge it is there just to speed the internet. आप हमारी जानकारी में हम ऐसे सोचते हैं कि हमारे इंटरनेट के बहाव को तेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Now very soon 5G is going to come. बहुत ही जल्दी 5G भी आने वाला है। Is it a profit for you or on the other side? लेकिन ये आपके लिए इस्तेमाल प्रॉफिट होकर लाभ होकर रहेगा या सामने वाले व्यक्ति के लिए लाभ होकर रहेगा। We are thinking my phone is working very fast, I can get all the applications very easily. हम ऐसे सोचते हैं कि मेरा मोबाइल बहुत ही तेजी से कार्य करेगा और मेरा जोर कुछ जरूरी है, जल्दी से जल्दी उपलब्ध होगा। No, dear ones. वैसा नहीं है प्रिय लोगों। On the other side, the big brother is catching you, trapping you, dragging you very fast. सामने का एक व्यक्ति, आपका बड़ा भाई, आपको फंदे में डाल रहा, आपके ऊपर नजर रख रहा है। Once you went in through once you opened the account in this Facebook, एक बार यदि आप फेसबुक का खाता खोल दिए तो you may not send any messages through that. शायद आपको उसके जरिए संदेश भेजना होगा या नहीं भी भेजना होगा। You can never be come out from that. लेकिन उससे आप बाहर कदापि नहीं निकल पाओगे। This is called the AI, इसको बोलते हैं AI, artificial intelligence. इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। That means your father, mother, your brothers, your sister, your colleagues, they may forget everything. आपका पिता, माता और आपका बंधु मित्र जो है कुछ बातों को भूल सकते हैं। But this Google and this Facebook, they will never forget what you feed over there. लेकिन ये गूगल का खाता जो है वो कदापि नहीं भूलेगा कि आपने उससे क्या किया। Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। Let me go to the third one. अभी मैं तीसरा बात की ओर जाता हूँ। That is called the robotic age. ये रोबोटिक एज करके कहलाया जाता है। Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। In the picture you can see many photos over there. आपके हाथ में दिया हुआ नोटिस में कई चित्र को आप देख सकते In हैं। the first picture, it is shaking hands. ये पहला पिक्चर में वो हाथ मिला रहा है And this is the picture which could lift up the very heavy items. और ये ऐसे एक चित्र
यंत्र है जो कोई भी वजनदार वस्तुओं को भी उठा पाएगा। And here the robot is driving the car. और तीसरा, ये रोबोट जो है कार चला रहा है। Now here the robot is watching or guarding. और ये चौथा पिक्चर में ये रोबोट जो है हर एक को रक्षा करता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Now let me tell you very in short. और इस बातों को मैं संक्षिप्त रीति से कहने के लिए This चाहता is हूँ। called the industrial revolution. इसको बोलते हैं आधुनिकता का क्रांति। Industrial revolution 4.0. ये आधुनिक क्रांति 4.0 करके कहलाया जाता Or है। we can say it's a fourth revolution. और इसको चौथा क्रांति करके कहते हैं। If so, what is the first three? तो पहला तीन क्या था? First revolution is invention of wheel. पहला जो है वो व्हील को वे ढूंढ निकाले। Through that wheel, people could travel over many places. चक्का के द्वारा वे कई जगह में वे यात्रा कर पाते हैं। Second revolution is दूसरा आविष्कार क्या है? Henry Ford. Mr. Henry Ford found a car. हेनरी फोर्ड नामक एक व्यक्ति ने उसने एक कार का आविष्कार किया। That model of car is Model T in 1908. मॉडल, उस कार का मॉडल है 1908 टी। And after that revolution 3, और एक तीसरा आविष्कार flexibility or customization. फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमाइजेशन। Now, what is the means use of these robots? इस रोबोट का काम क्या है? Just replacing the human. एक मनुष्य को छोड़कर एक यंत्र मनुष्य को उसके सामने रखना। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Especially in BMW company, that is car company, एक BMW कार कंपनी which is in Germany in Europe. वो यूरोप में जर्मनी नामक देश में है। Totally it's robotic. वो पूरी रीति से यंत्र मनुष्य के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। But these robots are all programmed. लेकिन हर एक रोबोट को वो प्रोग्राम किया गया है। Of course it is good. वो बहुत ही अच्छा है। That means within an hour how much an ordinary man could do. एक सामान्य मनुष्य कितना घंटा वो काम कर पाएगा? एक घंटा में कितना? कि एक घंटा में कितना ही काम कर पाएगा वो। But this robot could do 10 times more than that. लेकिन ये यंत्र मनुष्य जो है उससे भी 10 गुना ज्यादा काम कर सकता है। That's why in every places now the robot age is coming. इसीलिए हर एक जगह में इस यंत्र मनुष्य के द्वारा काम किया जाता है। But one problem. लेकिन उसमें एक कमजोरी है। I told you here one robot is guarding here. यहाँ एक रोबोट सुरक्षा करता है। That means keeping gun in its hands. उसके हाथ में एक बंदूक है। It is programmed. उसको प्रोग्राम किया गया है। In one place it was happened like this. एक जगह में ऐसे एक घटना हुआ। Because the program was like this. उसके अंदर ऐसे एक प्रोग्राम किया गया था। 24 hours it will guard that gate. 24 घंटा वो उस फाटक के सामने वो रक्षा करता रहेगा। Anybody wants to enter inside that factory or the industry or the company, यदि उस कंपनी के अंदर यदि किसी को प्रवेश करना है, they have to show their ID card. वे अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। Unfortunately, one night that company caught fire. अकस्मात एक रात को उस कंपनी के अंदर आग जल गया। So MD was informed. और उस एमडी को कहा गया था। So immediately he took the car, he came to the gate. और उस एमडी अपने कार को निकलकर उस फाटक के सामने आ पहुंचा। Because of that fire, he wanted to enter in. उस आग जलने के कारण तुरंत उसके अंदर प्रवेश करने के लिए वो चाहा। Immediately robot stopped. रॉबर्ट ने तुरंत उसको रोक दिया। But he couldn't see the robot, but he just saw only the fire. वो उस यंत्र मनुष्य को नहीं देखा, वो आग जलता हुआ स्थान को देख रहा He है। just wanted to push the robot. वो तुरंत उसको धक्का देने लगा Immediately shoot that man. और वो रोबोट यंत्र मनुष्य ने एमडी को शूट कर दिया। He was no more. वो मर गया। It is programmed. उसको केवल कहा गया है, प्रोग्राम किया गया है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की Here once, these same robots are going to come in the tribulation times. यही रोबोट हमारे क्लेश काल के समय पर आने वाला है। In the book of Revelation, you could see that idol will speak. प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं वो मूर्त वो बात करेगा। That image will speak. वो मूर्त वो बात करता है। That is programmed robots. वो उसके अंदर प्रोग्राम किया हुआ यंत्र मनुष्य है। And one more thing is left in this picture. और एक ये चित्र में बाकी है। That is called the LGBT community. LGBT कम्युनिटी। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति What हो। is that LGBT community? ये LGBT कम्युनिटी क्या है? Give attention to it. उसके लिए आप कृपा करके ध्यान दीजिए। L for lesbian. एल का मतलब लेस्बियन, G for gay. जी का मतलब गे, B for bisexual.
बी का मतलब बायोसेक्सुअल T for transgender. और टी का मतलब ट्रांसजेंडर। This is called LGBT community. इसको LGBT कम्युनिटी करके कहा जाता This है। is not something is written in some books. ये कई पुस्तक में लिखा गया नहीं है। Most of the metro cities, this community is functioning, working. हर एक आधुनिक शहर में ये कम्युनिटी आज आ गया है। Even where I am serving the Lord in Calcutta, this community was there. जहाँ मैं कलकत्ता में सेवा करता हूँ वहाँ ये समाज पाया जाता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति What हो। the word of God says about it. इसके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है? Please quick read the verse. आप प्रभु का वचन को जल्द से जल्द पढ़िए। First this lesbian, LGBT, first L for lesbian. यल का मतलब लेस्बियन नहीं तो समलिंग। Read Romans chapter 1 verse 26. रोमी के पत्रिका पहला अध्याय का 26वां वचन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरोध है बदल डाला। For this cause God gave them up unto the vile affections, for even their women unchanged their natural use into Women their... unchanged the nature. स्त्रियों ने स्वाभाविक व्यवहार से विरोध काम किया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की I स्तुति don't हो। want to go much deeper in this because many of you know this. इस बातों के बारे में मैं गहरा रीति से नहीं जानने के लिए चाहता हूँ। आप हर एक लोग जानते हैं। Regarding them, Romans 1:26 speaks clearly. इनके बारे में रोमी की पत्रिका पहला अध्याय के 26वां वचन स्पष्ट रीति से कहता है। Next G for gay. और जी का मतलब गे। What the Bible says about it? ये समलिंग पुरुष से पुरुष करने वाले समलिंग के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है? Next verse 27. 27 वचन पढ़िए। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुष के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। And likewise also the men, leaving the natural use of the women, burned in their lust one toward another, men with men, working that which is Men with unseemly. men. पुरुष पुरुषों के साथ, That is called gay. जिसको समलिंग करके कहते हैं। Women with women, that is called lesbian. ये स्त्री और स्त्रियों के साथ करने वाले पाप को कहते हैं। Thirdly, bisexual. और तीसरा उपलिंगी। Romans 1:28. रोमी के पत्रिका 1 का 28। There we read about reprobate mind. वहाँ नीच कामनाओं करके देखते हैं And they had the vile affections. और उनके अंदर रहने वाले नीच कामनाएं। That means desire for both. उनके अंदर दोनों समलिंग के प्रति रहने वाला प्रेम। They mingled with women as well as men also. वे स्त्रियों के साथ भी व्यवहार करेंगे और पुरुषों के साथ भी वे संबंध रखेंगे। Finally, transgender. आखिरी में लिंग परिवर्तन। That means today in many countries people are changing the gender. इन दिनों में कई देशों में लोग अपने लिंग को परिवर्तन करते हैं। Altogether, the Bible calls it a sin of Sodom. ये सारे बातों को प्रभु का वचन कहता है, ये सोदोम का पाप है। Even Jesus also spake about these things. प्रभु यीशु मसीह भी इसके बारे में कहा था। In the last days, these things will happen. आखिरी दिनों में ये सारे घटना होगा। Sins of Sodom is growing everywhere. सोदोम का पाप हर एक जगह में फैल रहा है। What is the sin of Sodom? सोदोम का पाप क्या है? Genesis chapter 19 verse 4 and 5 it is written. उत्पत्ति का पुस्तक 19वां अध्याय 4 और 5वां वचन में माने के समय, When the angels entered in the house of Lot, जब स्वर्गदूत लोत के घर के अंदर प्रवेश किया, all the city people they gathered over there and they called that man. शहर के हरेक लोग इस घर के पास आकर उन पुरुषों को बाहर बुलाते हैं। And they said, send them out, we want to know them. वे कहते हैं उनको बाहर भेजो, हमें उनको जानना है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। One thing, sin has a sound. हम हरेक लोग को एक जानना होगा, पाप के लिए एक आवाज है। You may ध्वनि do है। that sin within the four walls. ये 4 दरवाजा दीवार के बीच में, Or you may do that, you commit the sins where nobody could know. आप ऐसे एक पाप कर सकते हैं कि कोई उसे जानता नहीं होगा। For a couple of days, couple of months, you may forget what you have committed. कुछ दिनों तक, कुछ महीना तक आपने क्या किया करके आप भूल सकते हैं। But remember one thing, the sin has a sound, its own sound. लेकिन एक बात हमें जानना होगा कि पाप के लिए एक आवाज है। Though we may not hear that voice, लेकिन हम शायद उस आवाज को नहीं सुन पाएंगे। according to the word of God, heaven and hell knows that voice. लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा स्वर्ग और नरक इस आवाज को पहचानते हैं। In Genesis 19 chapter verse 13 it is written, उत्पत्ति का पुस्तक 19वां अध्याय के 13 वचन में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि हम ये स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है।
For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the Lord, and the Lord hath sent us to destroy it. The cry of the city is great. इस नगर का चिल्लाहट बहुत ही बड़ा है. What is that sound? ये चिल्लाहट क्या है? That is the sound of sin. ये पाप का चिल्लाहट है. They have committed deliberately they committed sin. वे जानकर भी उन्होंने पाप किया. Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो. So this LGBT belongs to the spirit of Sodom. ये LGBT का जो समाज है, ये सोदोम का आत्मा है. You know, in that picture there is one word, it is written. इस चित्र में ऐसा एक अक्षर लिखा गया है. Marriage is about love, not the gender. ये ब्याह जो है वो केवल प्रेम के ऊपर निर्धारित है, वो लिंग के ऊपर नहीं है. You see here the two women, they joined together, they got married. ये दो स्त्रियां को आप देख सकते हैं, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, उन्होंने एक दूसरे से शादी किया है. Here two men are together, they got married and they got the certificate also. यहाँ दो पुरुष को देख सकते हैं, उन्होंने आपस में ब्याह किया, उनके पास सर्टिफिकेट भी है. And in Delhi, most of the youths are been struggling for this. ये दिल्ली शहर में कई जवान लोग इसके लिए वे इंतजार कर रहे हैं. That means they encouraged in this LGBT community. वो इस LGBT समाज को वे उस्का रहे हैं. They said, my life, my choice, my partner with consent. So वे कहते हैं मेरा जीवन है, मेरा साथी है, और उसके प्रति कोई प्रतिबंध नहीं है. dear ones, these are all the signs of the last days. प्रभु के लोगों, ये सारे बातें आखिरी दिनों का चिन्ह है. Even no one could control today's youngsters. इन दिनों में आधुनिकता के जवानों को कोई काबू में नहीं ला पाएंगे. Unless or until they have the fear of God, जब तक उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होगा, nobody can escape from this terrible sin. इस आगा पाप से कोई बचा नहीं सकता. Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति So हो. very soon the world government is going to come. बहुत ही जल्दी संसार का एक सरकार आने वाला है. Very soon there is going to be one market or a common market. बहुत ही जल्दी समाज का एक ही बाजार आने वाला है. For that only now our India is getting ready. उसके लिए हमारा भारत देश तैयार हो रहा है. Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो. Next, one of the signs of the last days is अगला एक आखिरी दिनों का चिन्ह क्या है? Gospel of Matthew chapter 24 verse 6. मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय के 6वां वचन. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. End is not yet. अंत ना होगा. That means you will hear the rumors of war. आप लड़ाई के बारे में आप चर्चा सुनेंगे. Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो. Till, that means thus far, till the survey of till 2000 years, 14,500 wars have taken place. 2000 साल तक अब तक 14,500 लड़ाई हो चुका है. Now I am going to tell about the third world war. अभी मैं तीसरा महायुद्ध विश्व युद्ध के बारे में कहने जा रहा हूं. This is the revelation from the base of the word of God which I got. ये प्रभु का वचन के द्वारा ठहराया हुआ प्रकाशवान जो मुझे मिला है. I'll just be being on the base of the word of God. I would like to share it with you. प्रभु के वचन के आधार पर कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं. Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो. 14,500 wars has been taken place. 14,500 लड़ाई हो चुका है. So among this first war is done by Abraham, इसमें सबसे पहला युद्ध इब्राहिम के द्वारा किया गया था, which is written in Genesis chapter 14 verse 14 to 16. उसके बारे में उत्पत्ति का पुस्तक 14 अध्याय 14 से लेकर 16 वचन तक पढ़ सकते हैं. Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो. So among this first and second world war also, among this 14,500 war. ये 14,500 युद्ध में दो युद्ध, पहला और दूसरा विश्व महायुद्ध है. Every war has a reason behind it. हर एक युद्ध के पीछे एक कारण होगा. When was that first world war took place? कब पहला विश्व महायुद्ध हो गया था? It is 1914. वो 1914 में. And it ended at 1918. और वो 1918 में खत्म हो गया. So what was the reason behind it? उसका कारण क्या था? Austrian prince Fernandez was shot dead. ऑस्ट्रियन प्रिंस फर्नांडस जो है उसको बंदूक से उड़ाया गया. So that was the reason for the first war. वो ही कारण था पहला विश्व महायुद्ध. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति And हो. we know there are many thousands and crores of people dead. उसके द्वारा कई हजारों और करोड़ों लोग नाश किए गए. Next to the second world war. दूसरा विश्व महायुद्ध It began at 1939. वो 1939 में शुरू हुआ And it ends at 1945. और वो 1945 में खत्म हो गया. Praise be to God. परमेश्वर की नाम की The स्तुति हो. horror and the
terror of this end of this war was very high. बहुत ही भयानक बातें इस युद्ध के द्वारा बीत चुका। Now this first world war and second world war, both of them indicates in the history. पहला विश्व महायुद्ध और दूसरा विश्व महायुद्ध इतिहास में लिखा गया है। But third, fourth, fifth world war is mentioned in the scripture. लेकिन तीसरा, चौथा और पांचवा विश्व महायुद्ध प्रभु के वचन में लिखा गया It है। is clearly mentioned in the word of God. वो स्पष्ट रीति से प्रभु के वचन कहता है। Now the question is, लेकिन अभी ये सवाल क्या है, when will this third world war take place? कब इस तीसरा विश्व महायुद्ध होगा? Thus far we might have heard so many things about it. अब तक इसके बारे में हम कई बातों को सुने होंगे, Let me show you the word of God. लेकिन अभी मैं आपके सामने प्रभु का वचन को How रखने के these things चाहता are हूँ। going to happen. कब कैसा ये सारे बातें होगा? Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Now, before telling this third world war, ये तीसरा विश्व महायुद्ध के बारे में कहने के पहले let me tell you about the two things about this fourth and fifth. मैं उसके पहले चौथा और पांचवा विश्व महायुद्ध के बारे में कहने के लिए चाहता हूँ। In Revelation chapter 16, जब हम प्रकाशित वाक्य 16 वचन में 16 अध्याय में आने के समय verse 12 to 16 when we read, जब 12 से 16 वचन में हम पढ़ते हैं, there we see about the fourth world war. वहाँ हम चौथा विश्व महायुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। That is called Armageddon. वही अर्मगदोन का युद्ध। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की It स्तुति हो। will take place after the tribulation period. वो क्लेश काल के समाप्ति में होगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति And हो। the fifth world war is और पांचवा विश्व महायुद्ध Revelation chapter 20 verse 8 and 9. प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 8 और 9वां वचन। And this will happen the end of the 1,000-year millennium. और ये 1000 साल के अंत में ये विश्व महायुद्ध होगा। So if so, when the third world war will take place? यदि बात ऐसा है तो तीसरा विश्व महायुद्ध कब होगा? In Ezekiel chapter 38, जब हम एजेकियल भविष्यवक्ता का पुस्तक 38वां अध्याय में आते हैं, Ezekiel 38 verse 8 to 17 when you read, go home and read these verses. एजेकियल भविष्यवक्ता का पुस्तक 38वां अध्याय 18 से 8 to 17. 8 से 17 वचन पढ़ने के समय Or chapter 39 verse 2 to 4. और 39वां अध्याय 2 से 4 वचन पढ़ने के समय And the same chapter 11 to 6. और उसी अध्याय के 11 से लेकर 16 वचन तक पढ़ने के In समय all these verses it is clearly mentioned where it will take place. ये सारे वचन में स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि ये युद्ध कहाँ होगा। We all know the Israel people were scattered here and there. हम सब जानते हैं इस्राएल लोग यहाँ वहाँ तितर पितर बिखरे गए। After many years, कई साल के बाद they were gathered, वे सारे लोग इकट्ठा किए गए, which is written in 9th and 16th verse of 38th chapter of Ezekiel. एजेकियल भविष्यवक्ता का पुस्तक 38वां अध्याय के 9वां और 16 वचन में इसके बारे में लिखा गया है। And 8th verse also it is written. और 8वां वचन में भी लिखा गया है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। When Israel were gathered in one place and they will dwell safely in that place, इस्राएल लोग भी एक जगह में इकट्ठा किया जाकर वे सुरक्षित वहां पाए जाएंगे। 9 and 16 says enemies will come over there 9वां और 16 वचन में कहा गया है कि शत्रु लोग उनका सामना करेंगे in order to fight against this Israelites. ताकि वे इस्राएलियों के विरोध में लड़ाई कर सके। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की In स्तुति the हो। same chapter it is written, this battle or this third world war will take place in the mountain of Israel. ये तीसरा विश्व महायुद्ध इस्राएल के पर्वत में रखकर किया जाएगा। Now, what Jesus said about it? इसके बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा? Read Luke chapter 21, लूका को सुसमाचार 21वां अध्याय verse 20. उसका 20वां वचन। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, they know that the desolation thereof is nigh. When you see this Jerusalem is compassed with the enemies जब or armies, जब तुम देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घेरा हुआ है, so the desolation is nigh. उसका उजड़ जाना बहुत ही निकट आ पहुंचा है। Jesus never said, my coming is nigh. वहाँ यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा आगमन बहुत ही निकट है। I'm sorry, in the beginning itself I told you the revelation which God gave me, I'm just sharing with you. मैं शुरुआत में ही कहा कि यीशु मसीह ने जो मुझे प्रकाशन दिया मैं आपके सामने रखता हूँ। The ultimate purpose of our hope is to caught up in His secret coming. हमारे एक उद्देश्य है कि सभी प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन में हमें उठा लिया जाना है। Let it come after the third world war or before the third world war. उसके पहले तीसरा विश्व युद्ध हुए या उसके बाद में तीसरा विश्व महायुद्ध हुए। As far as what I read through the scripture, जैसा मैं प्रभु का वचन को मैंने ध्यान किया, while the third war will take place on this earth, जब
ये तीसरा विश्व महायुद्ध इस संसार में होगा। According to the statement of Jesus Christ, we will be here only. यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम इस पृथ्वी में ही पाए जाएंगे। When ye shall see that armies are compassed about Jerusalem, जब तुम देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घेरा हुआ है। now remember the desolation is at night. स्मरण करो कि उसका उजड़ जाना निकट आ गया है। He never said, I'm going to come at that time. वहाँ यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरा आना बहुत ही निकट है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Not only that, इतना ही नहीं, the prophecy it is written like this. भविष्यवक्ता ऐसा कहता है, I will make this Jerusalem burden to everyone. मैं यरूशलेम को हरेकों के लिए बोझ होकर ठहराऊंगा। Zechariah chapter 12 verse 3. जकरया का पुस्तक 12 अध्याय के 3 वचन। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगी। And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people. All that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it. Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। God will make this Jerusalem as a burden to everyone. यरूशलेम को प्रभु हरेकों के लिए एक बोझ का पत्थर होकर बदल देगा। That means everyone will come against the Jerusalem. हरेक लोग यरूशलेम का सामना करेंगे। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Now the problem is between Palestine and Israel. अभी फलस्तीनियों और इसराइल के विरोध में एक समस्या है। That means in order to remove that problem, अभी ये समस्याओं को हटाने के लिए 1983 UNO conference was there. 1983 में यूएनओ का कॉन्फ्रेंस ऐसे चलाया गया। 199 countries, nations were gathered over there. 199 देश वहां इकट्ठा किया गया। No, 199 nations were there. 199 जाति राज्य लोग इकट्ठा किए गए। Among that 152 nations were gathered. उसमें 150 राज्य लोग इकट्ठा हुए थे। So among that, except US and Israel, all other 150 nations against to Jerusalem. उसमें इस्राएल को और अमेरिका को छोड़कर लगभग 150 राज्य से अधिक इस्राएल के विरोध में पाए गए थे। You know what was their consultancy? उनका कहना क्या है? Or what was their counsel? और उनका सलाह क्या था? The name of Israel should be blotted out. वो ऐसा कहते कि इस्राएल का नाम भूचित्र से हटाया जाना चाहिए। It is not those people's idea, वो उनका एक समझ नहीं था, but it is written in the scripture. लेकिन ये बातें प्रभु का वचन में लिखा गया है। In Psalms 83 verse 3 and 4 when we read, जब भजन 83 के 3 और 4 में आते हैं, there it is written. वहाँ ऐसा लिखा गया है। 4th verse says like this. 4वां वचन ऐसा कहता है, They have said, come and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be no more in remembrance. आओ हम उसका चढ़ाई करेंगे ताकि उसका नाम कदापि स्मरण न किया जाए। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। That was their consultancy council. ये उनका एक सलाह होकर पाया गया था। But till now, God is protecting Israel. लेकिन अब तक प्रभु इस्राएल को रक्षा करता है। Even in our time, last 15th January, आखिरी जनवरी के 15 तारीख में 70 nations get together 70 राज्य लोग इकट्ठा होकर to have a peace talk between Israel and Palestine. और उन्होंने एक शांति का बात इस्राएल और पैलेस्टाइन के बीच में करना चाहा। Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। And in that also many nations were against Israel. उसमें कई राज्य लोग इस्राएल के विरोध में उठ खड़ा हुए। Praise be to God. प्रभु की नाम की Dear स्तुति ones, हो। remember once, this word of God is true. प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन सच्चा है। They wanted to blot out the name of Israel. वे चाहते थे कि इस्राएल का नाम पूरी रीति से मिटा डाले। It should not be called as a nation. वे एक राज्य होकर कहलाना नहीं चाहिए। But God is strengthening His people. लेकिन प्रभु के लोगों को प्रभु बलवंत करता है। And we know 100 nations got freedom. हम जानते हैं कि 100 राज्य उनके लिए एक स्वतंत्रता था। But God never speaks about all the nations. लेकिन प्रभु सारे राज्य के बारे में नहीं बोलता है। What Jesus speaks about the nation? लेकिन यीशु मसीह राज्य के बारे में क्या कह रहा है? Gospel of Luke chapter 21. लूक को सुसमाचार 21वां अध्याय Verse 29 and 30 it is written. 29 और 30 वचन में ऐसा लिखा गया है, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, and He spake to them parable, behold the fig tree and all the trees. उसने एक दृष्टांत कहा, अंजीर के वृक्ष और सारा वृक्ष। That means first He mentioned the fig tree.
पहला उसने अंजीर के वृक्ष के बारे में कहा। Fig tree is the emblem, or the fig leaf is the emblem of the Israel. ये अंजीर का वृक्ष जो है वो एक चिन्ह होकर पाया जाता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। You know, in the First World War, 33 countries get together and they had the First World War. पहला विश्व महायुद्ध में 33 राज्य इकट्ठा होकर ये युद्ध को उन्होंने किया था। But in this Third World War, लेकिन ये तीसरा विश्व महायुद्ध not में all the countries, not all the world will get together. ये पूरा संसार इकट्ठा होकर नहीं करेगा। Bible says very few countries, nations will come against these Israelites. प्रभु का वचन कहता है केवल थोड़ा राज्य इकट्ठा होकर इस्राएल के विरोध में चढ़ाई करेगा। Ezekiel chapter 38 verse 5 and 6, that name of the nations are mentioned. एजेकियल भविष्यवक्ता का पुस्तक 38वां अध्याय 5 और 6 में उस राज्य के नाम लिखा गया है। That means very few, 5 or 6 nations are there. केवल 5 और 6 राज्य के बारे में लिखा गया है। Among that Russia also is there. उसमें रूस देश भी है। Yes, in Russia now it's very poverty. आज रूस देश में एक बड़ा दरिद्रता है। How these people will come and fight with God's people? ये दरिद्र लोग प्रभु के लोगों के विरोध में कैसे लड़ाई कर पाएंगे? God will strengthen the Russia also. प्रभु इस रूस देश को भी बलवंत करेगा। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Very soon the Russia will become a powerful country. बहुत ही जल्दी रूस देश एक बड़ा सामर्थ्य देश होकर बदल जाएगा। So all these countries get together, join together, and they come against to these Israelites. ये सारा देश इकट्ठा होकर इस्राएल के विरोध में चढ़ाई करेगा। Now the question is this: अभी एक सवाल ऐसा है, how this one country, one nation, Israel, face all these nations? ये एक राज्य इस्राएल राज्य ये सारे राज्य का कैसा सामना कर पाएगा? Answer is very clear in the scripture. इसके बारे में प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से कहता है। During that time, how God will make the governors of Judah. उन दिनों में प्रभु यहूदा के प्रधानों को क्या करेगा? Read Zechariah chapter 12 verse 6. जकरयाह का पुस्तक 12वां अध्याय के 6वां वचन। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी बापूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी यरूशलेम में। In that day will I make the governors of Judah like an hearth of fire among the wood, and like a torch of fire in a sheaf, and they shall devour all the people round about on the right hand and on the left, and Jerusalem shall be inhabited again in her own place, even in Jerusalem. It will habit in its own place. वे अपने स्थान में ही बने रहेंगे। Here it is written how God will make the governors of Judah. यहाँ कैसे प्रभु यहूदा के अधिपतियों को बलवंत करेगा? They will make him as a torch of fire in a sheaf. वो वहाँ उसे एक जलने वाला लकड़ी के समान प्रभु बदल देगा। And this Judah, this Israel people will devour all the people round about. ये इस्राएल लोग अपने चारों तरफ रहने वाले लोगों को वे नाश करेंगे। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। This way the third world war is going to take place. इसी रीति से तीसरा विश्व महायुद्ध होगा। It will be held at the mountain of Israel. ये इस्राएल के पर्वत में रखकर होगा। And all these 5 nations or 6 nations will come against this Israel. ये 5 राज्य जो है और 6 राज्य इस्राएल के विरोध में चढ़ाई करेगा। God will be on the side of Israel and strengthen them, and they will devour the enemies. प्रभु इस्राएल को बलवंत करके वे अपने शत्रुओं को मार गिराएंगे। Now the question is this. अभी एक सवाल ऐसा है, I told you that time we will be on this earth. मैं कहा उन दिनों में हम इस संसार में पाए जाएंगे। What will be our condition? हम उन दिनों में कैसे रहेंगे? Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Bible clearly says प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से in कहता है, Isaiah chapter 31 verse 5, God promised, ईसाया भविष्यवक्ता का पुस्तक 31वां अध्याय 5वां वचन में प्रभु वायदा करता है, as birds flying, so will the Lord of hosts defend Jerusalem. Read that verse please. पंख फैलाए हुई चिड़ियों की नाई सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Like that bird, God will defend Jerusalem. ये पंख फैलाया हुआ पक्षी के समान प्रभु उनको रक्षा करेगा। That means surely God will protect His people. वहाँ निश्चय रीति से प्रभु अपने लोगों को रक्षा करेगा। Now the another question is this: दूसरा एक सवाल ऐसा है, will all the Christians will be saved, क्या पूरा मसीह लोग संभाले जाएंगे? or will God protect all the Christians? क्या प्रभु सारे मसीहों को संभालेगा? When God wanted to destroy the Sodom, जब प्रभु सोदोम को नाश करने के लिए चाहा, in Genesis chapter 18 verse 17, God said like this: उत्पत्ति का पुस्तक 18 अध्याय के 17 वचन में प्रभु ऐसा कहा, shall I hide Abraham what I am going to do with
क्या मैं इब्राहिम के प्रति मैं क्या करने के लिए चाहता हूँ, क्या मैं छिपाऊंगा? I will not hide anything to Abraham. मैं कोई भी बातें इब्राहिम से नहीं छिपाता हूँ। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। And verse 23, Abraham pleaded. 23 वचन में इब्राहिम प्रभु से विनती करता है। What he was pleading? वो क्या विनती करता है? Lord, when thou destroy this Sodom, प्रभु जब तू सोदोम को नाश करेगा, will thou destroy righteous man with the wicked? क्या आप धर्मी को दुष्ट के साथ नाश करेगा? God said, no, never I will do it. प्रभु कहा, मैं कदापि वैसा नहीं करूंगा। I will never destroy the righteous along with the wicked. मैं कदापि एक धर्मी को दुष्ट के साथ नाश नहीं करूंगा। In verse 25 and 26 we read that verse. 25 और 26 में हम उस बातों के बारे में पढ़ते हैं। Remember one thing. एक बातों का स्मरण कीजिए। Third world war is going on. तीसरा विश्व महायुद्ध होता है। God will protect his people, I said, according to this verse. इस वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों को संभालता है, But not the wicked one. लेकिन दुष्ट को नहीं संभालेगा। I'm not speaking about the wicked who is outside. मैं इस दुष्ट जो संसार में उनके प्रति नहीं बात करता हूँ। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। When we were in the miry clay, जब हम दलदल के कीचड़ में थे, it is he that came to us and he lifted us and set our feet upon the rock. उसने हमें वहां से निकालकर चट्टान में हमारे पैरों को खड़ा किया। He redeemed us by his precious blood. उसने अपने बहुमूल्य लहू से हमें छुड़ाया। He cleansed our sins with his precious blood. उसने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे पापों से धो दिया। He made us to enter the covenant. हमें उस बादशाह के भीतर प्रवेश करने के लिए सहायता किया। He has sealed us with the Holy Ghost. उसने पवित्र आत्मा का छाप दिया। And he has given us the spirit of adoption in our hearts. और हमारे लिए लेपालकपन दिया। By we cry unto him, Abba Father. ताकि हम उसकी और अब्बा पिता करके पुकार सके। Will he leave us? क्या हमें वो छोड़ देगा? He wants, will he leave us? क्या हमें वो छोड़ सकता है? Never and ever. He will never leave us. वो कदापि हमें नहीं छोड़ेगा। God will protect his church and his people. प्रभु अपने कलीसिया और अपने लोगों को संभालता है। But one thing. लेकिन एक बात है, All the liars who is in the church will be destroyed. लेकिन जो कोई झूठे कलीसिया में पाए जाते हैं वे नाश किए जाएंगे। Liars in the church. जो कोई कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं वे नाश किए जाएंगे। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। They are also anointed people. वे भी अभिषिक्त लोग हैं, But they are liars. लेकिन वो झूठा है। But fornicators will be destroyed. जो व्यभिचार लोग हैं वे नाश किए जाएंगे। Murderers will be destroyed. जो हत्या करने वाले नाश किए जाएंगे। Keeping bitterness in the heart against brother and sister will be destroyed. जो भाई और बहन के विरोध में कड़वाहट रखते हुए नाश किए जाएंगे। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति Now हो। they will try to run and here and there. अब वो यहाँ वहाँ भागने के लिए प्रयास करते हैं। In Isaiah 24 it is written, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 24वें वचन में ऐसा लिखा they गया will है, try to escape from one place to another. वे एक जगह से दूसरी जगह भाग निकलने के लिए प्रयास करेंगे। Bible says they will fall into a pit. लेकिन वचन कहता है वे खड्डे में गिर जाएंगे। If anyone wants to escape from that pit, लेकिन कोई खड्डे से बच निकलने के लिए चाहेंगे, they will go and trap in a snare. वो एक फंदे में फंस जाएंगे। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। There is no remedy for the wicked on that day. उन दिनों में दुष्ट के लिए कोई बचाव नहीं रहेगा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Let me give one small example from the Bible. एक छोटा उदाहरण प्रभु के वचन से देने के लिए चाहता हूँ। Once the sons of Korah raised against Moses and Aaron. एक बार कोरा के संतान मूसा के विरोध में खड़े हो गए। And both Aaron and Moses fell on the ground and they were praying to the Lord. और मूसा और आरोन दोनों जमीन पर गिरकर प्रभु की ओर देखकर प्रार्थना करते हैं। So God said one thing. लेकिन प्रभु ने एक बात को कहा, Leaving the Korah and his sons, all others should come on your side. प्रभु ने कहा कोरा और उनके संतान को छोड़कर बाकी सारे लोग तुम्हारे पास आ जाए। Numbers chapter 16 verse 32 it is written. गिनती का पुस्तक 16 अध्याय के 32 वचन में ऐसा लिखा गया है, The earth opened its mouth पृथ्वी अपना मुंह खोलेगा and devour and it swallowed everyone, those who belongs to Korah and his tribe. और कोरा और उनके संतान हरेकों को वो निकल दिया। All others, those who were standing with Moses, they were all preserved. और जो कोई मूसा के साथ खड़े थे वे हरेक लोग बचाए गए। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Are you standing with the Moses? क्या आप मूसा के साथ खड़े हैं? Are you standing with the consecrated servants of क्या God? आप प्रतिष्ठित सेवक के साथ खड़े हैं? Are you standing the apostolic doctrines? क्या आप प्रेरितों के उपदेश में खड़े हैं? Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति He हो। wants all the wicked, all the liars will be destroyed on that day. उस दिन दुष्ट और सारे झूठे नाश किए जाएंगे। And damn sure God will protect His people, those who are living according to the truth and they are living the holy life. लेकिन जो कोई पवित्र जीवन और विश्वास जीवन और सच्चाई का जीवन बिताता है प्रभु उनका रक्षा करेगा। That's why right now the Spirit of God says, इसीलिए प्रभु का आत्मा इस समय ऐसा कहता है, He that is holy, let him be holy. जो पवित्र है और भी पवित्र होता He that जाए, is righteous, let him be more righteous.
जो धर्मी है और भी धार्मिकता में बढ़ता जाए, in order to be preserved on the Third World War. ताकि वो तीसरे विश्व महायुद्ध में अपने आप बचाव कर सके। Right now, it is the teachings of the Holy Spirit. We must live a holy life. इन दिनों में पवित्र आत्मा का ये शिक्षा है ताकि हम पवित्र जीवन बिता सके। It's the teaching of the Holy Spirit. We must live a righteous life. हम पवित्र आत्मा के सिखाव के द्वारा हम धर्मी जीवन बिताना है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। All the unrighteous will be destroyed. हर एक अधर्मी लोग नाश किए जाएंगे। Now, one more thing will happen at that time. उस समय और एक घटना होगा। On one side, on the outside, all the people will be destroyed. एक तरफ में सारे बाहर के लोग नाश किए जाएंगे। Suppose if you are preserved or protected on that time, यदि उस समय में आप संभाले गए हैं तो we will see a great entire sanctification inside the church, आप कलीसिया के अंदर एक बड़ा पवित्रता का कार्य देख सकते हैं, which happened in the first century, जो पहला सदी में हो गया था, which is written in Acts of Apostles chapter 5. वो प्रेरितों का काम 5वां अध्याय में लिखा गया है। Just saying one lie before the apostle. एक बात प्रेरितों के सामने था। Ananias and Sapphira just lied a word before Peter. अननियास और सफीरा एक छोटा झूठ उन्होंने पतरस के सामने बोला। Both of them fell down and they died. दोनों भी वहां सामने गिर पड़े और मर गए। In the same chapter 5th verse it is written, उसी अध्याय में 5वां वचन ऐसा कहता है, people got a great fear in them. हर एक प्रभु के लोगों के अंदर एक बड़ा भय छा गया। Everyone started to grow in this life of हर sanctification. एक लोग पवित्र जीवन में उन्नति कर पाए। So in the last days this entire sanctification will happen in the church. आखिरी दिनों में कलीसिया के भीतर एक पूर्ण पवित्रता का कार्य होगा। God will send a great revival in the church. प्रभु कलीसिया में एक बड़ा भेदारी को भेजेगा। And one more thing God will do at that time. उन दिनों में प्रभु और एक काम करेगा। Read Malachi chapter 3 verse 18. मलाकी का पुस्तक 3 अध्याय का 18 वचन। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। Then shall he return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। God will means make a difference between two groups. यहाँ प्रभु दो लोगों के बीच में अंतर को दिखाएगा। Who is righteous and who is unrighteous? कौन धर्मी है और कौन अधर्मी है। Who served the Lord, who served him not? कौन उसका सेवा किया और कौन उसका सेवा नहीं किया। On this earth only we could see those differences. ये इस पृथ्वी में ही उसके अंतर को हम देखेंगे। Are you serving the Lord? क्या आप प्रभु का सेवा कर रहे हैं? Are you serving the Lord sincerely? क्या आप वास्तविक तौर से प्रभु का सेवा को करते हैं? Or just you are doing the ministry show off? नहीं तो आप दिखावटी के लिए सेवा को करते हैं। If so, dear brother and sister, यदि वैसा है तो प्रिय भाई और बहन, repent for yourself. उसके लिए अपने जीवन में आप पछताइए। This days is fast approaching. ये दिन बहुत ही निकट आ पहुंचा है। Very soon God is going to show this difference. बहुत ही जल्दी प्रभु इस अंतर को दिखाएगा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। When all these things happened, ये सारे बातें जब घटेगा, in the Gospel of Luke chapter 21, Jesus said, लूका सुसमाचार 21वां अध्याय में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, when you see all these things, जब तुम ये सारे बातों को देखोगे, what you have to do? तब आपको क्या करना होगा। Read verse 28. पढ़िएगा वो 28 वचन। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. For your redemption draweth near. आपका छुटकारा का दिन आ पहुंचा है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। When you see all these things, जब ये सारे घटना को आप देखोगे, lift up your heads. अपना सर को ऊपर की ओर उठाओ। Arise from the slumber, spirit of slumber. अपने उस नींद से जाग उठो। This is not time for you to sleep. ये हमारे लिए सोने का समय नहीं है। That's when Songs of Solomon, in praise Solomon writes like this. श्रेष्ठ गीत में सुलेमान ऐसा लिखता है, Arise my love, मेरा प्रेमी तो जागोट, come away. तू बाहर निकाल। Kindly read that verse please. उस Songs वचन of को- Solomon chapter 2 verse 12 and 13. श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 13 और 14, 12 and 13. 12 और 13। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है, और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगी है और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही है। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। The flowers appear on the earth, the time of the singing of birds is come, and the voice of the turtle is heard in our land. The fig tree putteth forth a green figs, and the vines with the tender grape give a good smell. Arise, my love, my fair one, and come away. The fig tree putteth forth her green figs. यहाँ अंजीर के फल अपने वृक्ष का फल को देता है। That means, उसका मतलब though these Israelites started to grown up, ये ईसाई लोग जैसे वे बढ़ निकले,
when you see these signs, जब ये चिन्हों को आप देखोगे, when this fig tree putteth forth her green figs, जब ये अंजीर के वृक्ष अपने हरा वृक्ष को जब देगा, my love, my fair one, come away. मेरा प्रिय, मेरा प्रेमी, तू बाहर निकल. Even tonight, that same Jesus is calling you and me. इस रात के समय वही प्रेमी यीशु मसीह आपको और मुझे बुलाता है. Arise and come away. मेरा प्रेमी तू उठ और निकला. My love, come away. मेरे प्रेमी तू उठ निकला. Lift up your heads. अपना सर को ऊपर की ओर उठा ले. Your redemption is draweth nigh. तेरा छुटकारा का दिन आ पहुंचा है. Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति Dear हो. ones, if we want to preserve on the day of Third World War, यदि आप तीसरा विश्व महायुद्ध में आप बचने के लिए चाहते हैं, तो only one thing you have to do. एक ही बात को आपको करना होगा. Hearkening the voice of God. केवल परमेश्वर के वचन के ऊपर कान लगाकर Rise and come to Him. आप उठकर प्रभु की ओर बढ़ निकलना. Though you are a wicked, चाहे आप दुष्ट हो सकते होंगे, and God called my love, प्रभु कहता है मेरा प्रेमी, my fair one. मेरा सुंदर. Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो. Still He loves us. प्रभु हमें प्रेम करता है. And He loves us and He calls us. वो हमें प्रेम करके हमें बुलाता है. You come to me. तू मेरे पास चलिया. I will give you rest. मैं तुझे विश्राम दूंगा. I will preserve you. मैं तुझे संभालूंगा. God wants to save us and separate us from the wicked ones. प्रभु हमें बचाकर दुष्ट से हमें अलग निकालने के लिए चाहता है. Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो. Those who want to cut up it is coming. यदि हम प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए चाहते If हैं, you want to escape from all these things, यदि हम ये सारे घटना से बचने के लिए चाहते हैं, तो only one thing we have to do. एक ही बात को हमें करना होगा. Accept our faults. हमारे गलतियों को मान लीजिए. Confess our sins. अपने पापों को कबूल कीजिए. Lift up our heads. अपने सर को ऊपर की ओर उठाइए. Because all over the world, people are trembling. इस संसार के हर एक लोग वे कांप रहे हैं. There are so many changes in the moon, stars. हर एक बातें जो चिन्ह जो है चंद्रमा और तारागण में बदलावट दिखाई देता है. Even there is changes in the sun also. ये सूरज में भी कई बदलावट को आप देख सकते हैं. Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो. By seeing all these things, men are trembling. ये सारे बातों को देखकर मनुष्य थरथराता है. But a group of people are awaiting the coming of the Lord. लेकिन एक झुंड लोग प्रभु के आगमन के लिए इंतजार कर रहे They're हैं. eagerly waiting for the coming of the Lord. वे प्रभु के आगमन के लिए वे तरस रहे हैं. Those who knows this truth. यदि हम ये सच्चाई को जानते हैं, तो Jesus said, "Ye shall know the truth, and truth shall set you free." यीशु मसीह ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा. Where there is spirit, there is liberty. जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है. If you felt that you are bound, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बंधे गए हैं, if you तो felt that fear is haunting your life, यदि आपको ऐसा लगता है कि डर आपको दर दबोच रहा है, surrender your life in the hands of God आप tonight. अपने जीवन को इस रात के समय प्रभु के हाथ में दे दीजिए. Right now, God will deliver you. इस रात के समय प्रभु आपको छुड़ाएगा. Shall we all close our eyes? अपने हर एक को के आंखों को हम बंद कीजिए. Shall we all close our eyes? अपने आंखों को हम बंद करेंगे. Look unto the heaven. आप स्वर्ग की ओर उठाइए. Let us lift up our heads. अपने सर को स्वर्ग की ओर उठाइए. God, preserve me, O God. प्रभु मुझे बचा ले. Protect me from all these harms, O Lord. मैं हर एक हानि से मेरे जीवन को बचा ले. I want to be saved from all these, O Lord. मैं हर एक हानि से अपने जीवन को बचाने के लिए चाहता हूँ. Increase the hope of thy coming in my heart. मेरे जीवन में, मेरे हृदय में तेरे आगमन का आशा को नया कर. I heard all these signs of the last days. मैं हर एक अंतिम दिनों का चिन्ह को मैं देख सकता हूँ. But my only desire is, लेकिन मेरा एक ही आग्रह है, when will my bridegroom come? कब मेरा प्रेमी आएगा? When he will come? कब मेरा प्रेमी आएगा? When will I meet him? कब मैं उसको मुलाकात When करूंगा? will he wipe my tears? कब वो मेरे आंसुओं को पोंछ डालेगा? When he will make me to help me deliver from all my burdens? कब मेरा हर एक बोझ से छुड़ाएगा? Lord, I'm eagerly waiting for that. मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ. Yes, Lord, I'm waiting for that. हाँ प्रभु, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा The हूँ. word of God says, प्रभु का वचन ऐसा कहता the है, love of God shed abroad in our hearts through Holy Ghost. प्रभु का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उंडेला जाता है. Hope maketh not ashamed. प्रभु आशा लज्जा नहीं करता. The hope which is in you will never make you ashamed. आपका आशा आपको लज्जित नहीं करेगा. God said, my people shall never be ashamed. प्रभु का वचन कहता है, मेरा लोग कदापि लज्जित नहीं होंगे. Yes, dear ones, God will never and never make you ashamed. हाँ प्रभु के लोगों, प्रभु आपको कदापि लज्जित होने नहीं देगा. Whether the third world war comes or not, शायद तीसरा विश्व महायुद्ध आए या ना our आए, Jesus will come. लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा. He that shall come, will not tarry. जो आने वाला है वो जरूर आएगा और देर नहीं करेगा. Maybe after the third world or before the third world war, वो तीसरा महायुद्ध के पहले या उसके बाद में it's our duty to live a holy life. हमारा कर्तव्य एक पवित्र जीवन बिताए. Shall we surrender our life for that? हम उसके लिए अपने जीवन को समर्पण करेंगे. May God bless us. हमारा प्रभु ये हमें आशीष करेगा.